6 سال پر پھیلی آزمائشوں کے بعد آخر کار میری بے گناہی کی تصدیق ہو گئی، لیکن دراصل یہ اس کھلی ناانصافی کا ازالہ ہے جس کا مجھے نشانہ بنایا گیا۔ مجھ سے دشمنی کرنے والوں نے میرے پاکستان کو کیوں نشانہ بنایا؟ چلیں کسی لاڈلے کو لانے کے لیے مجھے ہٹانا، جھوٹے مقدمات میں پھنسانا اور سزائیں دلوانا ضروری تھا، لیکن پاکستان کو کس جرم کی سزا دی گئی؟ اس پاکستان کو کیوں بھکاری بنا دیا گیا جو IMF سے نجات حاصل کر چکا تھا؟ مجھے آخر کیوں نکالا؟ نواز شریف نے ایک بار پھر سوالات کا جواب مانگ لیا۔ قوم سے خطاب میں کہا، اس شرمناک کھیل کے تمام کردار بے نقاب ہو چکے۔ مجھ سے دشمنی کرنے والوں نے پاکستان کا نقصان کیوں کیا؟ پاکستان عالمی برادری کا معزز رکن تھا، تنہا کیوں کر دیا گیا؟ پاکستان کو پھر دہشت گردی کا گڑھ کیوں بنا دیا گیا؟ میرے دور میں ترقی کرتے پاکستان کو کیوں اندھیرے میں دھکیلا گیا؟ مجھے سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کی گالیاں دی گئیں۔ میں نے معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا، اللہ نے مجھے بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات میں سرخرو کیا۔ وہاں سے گواہیاں آ رہی ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں تھا۔ عوام کی سزا ختم ہوگی تو مجھے حقیقی خوشی ہوگی۔ India has failed miserably to dampen the spirit of Kashmiri people. Generations after generations, their longing for freedom is as alive as it was 7.5 decades ago. I wish to remind the Indian leaders that unilateral steps in Jammu and Kashmir can neither accord legitimacy to their occupation nor suppress the true sentiments of the Kashmiri people. Gimmickry cannot replace legitimacy. پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے، کشمیر کے لیے 300 بار بھی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں خطاب۔ کہا، بھارتی سپریم کورٹ نے غیر قانونی غیر آئینی فیصلہ دیا۔ کٹ پتلی عدالتی فیصلوں سے زمینی حقائق بدلے نہیں جا سکتے۔ کشمیریوں کو طاقت کے زور پر زیر کرنے کا بھارتی خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ مسئلہ کشمیر عالمی طور پر تسلیم شدہ تنازع اور نامکمل ایجنڈا ہے۔ مسئلہ صرف اور صرف کشمیریوں کی استصحاب رائے سے حل ہوگا۔ پاکستان کشمیریوں کی تحریک آزادی کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ دنیا کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ The departments have no personality. They can't be good or bad. They are there to serve the nation. So if you want to target someone, then do so properly. Or don't say a word against them. It's not for us to tell you who to make a party or not to make a party. But one thing is clear. We will not hear a single allegation against a person who's not a party before this. I'll make allegations against this person, but I will not make him a party. That is not fair. If you are making allegation, we have to hear that person also. شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس میں اہم پیش رفت۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق DGI فیض حمید کو فریق بنانے کی درخواست دائر۔ عدالت نے سابق فوجی افسران کو فریق بنانے کے لیے کل تک کی مہلت دی تھی۔ براہ راست سماعت نے چیف جسٹس سے سوال کیا، شوکت صدیقی کو مرضی کا فیصلہ کرنے کا کس نے کہا تھا؟ وکیل درخواست گزار حامد خان نے کہا، فیض حمید ایک افسر کے ساتھ شوکت صدیقی کے گھر آئے تھے۔ چیف جسٹس سے سوال کیا، جس شخص پر الزام لگا رہے ہیں انہیں فریق کیوں نہیں بنایا گیا؟ کسی پر الزام نہ لگائیں یا پھر اسے فریق بنائیں۔ ادارے نہیں، لوگ برے ہوتے ہیں۔ ملک کی تباہی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ شخصیات کے بجائے اداروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ بھی فیض حمید وغیرہ کو موقف کا موقع دے بغیر فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات پر پہلی اوپن کورٹ سماعت۔ جسٹس مظاہر نقوی کو 1 جنوری تک شوکاز نوٹس کا جواب جمع کرنے کی مہلت۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی 11 جنوری تک ملتوی۔ جسٹس مظاہر نقوی کی اوپن کورٹ سماعت کی درخواست منظور۔ کونسل کے 5 ارکان نے فیصلہ متفقہ طور پر کیا۔ سماعت کے دوران خواجہ حارث اور چیف جسٹس کے درمیان گرما گرمی۔ خواجہ حارث کی کارروائی ملتوی کرنے کی صدا، یہ جوڈیشل کونسل ہے، سپریم کورٹ نہیں، ہم شفافیت پر یقین رکھتے ہیں، چیف جسٹس کے ریمارکس۔
सारा इनाम के कातिल शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुना दिया। अदालत ने मुजरिम शाहनवाज को 10 लाख जुर्माना भी कर दिया। मुजरिम शाहनवाज की वालिदा समीना शाह बरी। कमरे अदालत में फैसला सुनते हुए सारा इनाम के अहले खाना रोते रहे। मुजरिम शाहनवाज अमीर ने सारा इनाम को सितंबर 2022 में कत्ल किया था। आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से कराने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। पीटीआई की दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। दरखास्तों पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश, फाइल चीफ जस्टिस को अरसाल। अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने DROs और ROs की ट्रेनिंग रोक दी। इलेक्शन कमीशन ने DROs और ROs की ट्रेनिंग शुरू की थी। इलेक्शन में ताखीर हुई तो जिम्मेदार तहरीके इंसाफ होगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का रद्द अमल। कहा पीटीआई इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश कर रही है, इलेक्शन के खिलाफ है। पीटीआई दरख्वास्त ने फरार की मनसूबाबंदी। पीटीआई हमेशा की तरह दोगली पॉलिसी पर कारबंद है। 2018 के इलेक्शन में भी ब्यूरोक्रेसी से आरोप लिए गए थे। शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, जुकाम और बुखार हो गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, कोई पार्टी बड़ी है तो इलेक्शन में ताखीर की बात क्यों करती है? लाडला बनने और सिलेक्शन से बेहतर है हम ऑपोजिशन में बैठे। रहनुमा IPP फिरदौस आशिक आवान का कहना है, पीटीआई ने इंतखाबी मैदान से राह फरार इख्तियार की। साइफर केस में जेल ट्रायल इन कैमरा होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने फैसला सुना दिया। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए। फैमिली मेंबरान को दौरान समाअत कमरे अदालत में रसाई दी जाएगी। अदालत ने साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। उधर साइफर ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, कोर्ट का इंतखाब जज का ही इख्तियार है। जज ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब कर सकता है मगर कोर्ट ओपन होनी चाहिए। अलीमा खान कहती हैं, बानी पीटीआई को जुल्फिकार भुट्टो के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। मीडिया का दौरान समाअत जेल में होना जरूरी है। तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन पीटीआई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब की 7 रोज़ा रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रियाला जेल में समाअत की। उधर तोशाखाना केस में नाअहली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। शेर अफजल मरवत लाहौर हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया। शेर अफजल मरवत को GPO चौक से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने उन्हें थाना मजम मुंतकिल कर दिया। इसराइल ने गजा में कयामत ढा दी। पनाह गुज़ीन कैंप्स और रिहायशी इलाकों में बारूद बरसा दिया। 24 घंटों में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद, 2 सहाफी भी शोहदा में शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 18,600 से बढ़ गई। मगरबी किनारे में इस्राइली फौज ने जनीन कैंप में 3 घरों को बमों से उड़ा दिया। 7 निहत्ते फलस्तीनी शहीद। इस्राइली टैंकों और बुलडोजरों ने जबालिया के कब्रिस्तान को भी रौंद डाला। सिहनी फौज ने सैकड़ों कब्रें मिसमार कर दी। उधर दुनिया भर में गजा जंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे जारी। इस्राइली मजालिम पर बाइडन इंतजामिया के मुलाजमीन भी खामोश न रहे। व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। महकमे खारजा के मुस्ताफी डायरेक्टर भी शरीक। लॉस एंजलिस में मुजाहिरीन का हाईवे पर ट्रैफिक ब्लॉक करके एहतजाज।
मुसीबत के मारे फलस्तीनियों का एक और इम्तिहान। गज़ा में एक तरफ बमबारी तो दूसरी जानिब तूफानी बारिश। खुले आसमां तले मौजूद फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गईं। जनूबी गज़ा में बेघर अफराद के खैमों में बारिश का पानी दाखिल। तेज हवाएं और मुसलसल बारिश बेघर शहरियों के इम्तिहान लेने लगी। पानी जमा होने से वबाई अमराज में इजाफे का खदशा। 19 लाख बेघर अफराद में से 3,60,000 वबाई अमराज से मुतासर। पाकिस्तान ने टीटीपी से मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, टीटीपी से बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, न किसी तीसरे मुल्क में। कहा, आर्मी चीफ का अमरीका का दौरा मामूल के दो तरफा ताल्लुकात पर मबनी है। आर्मी चीफ अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के एहलकारों से मुलाकात भी करेंगे। चेयरमैन पूरे पाकिस्तान का चेयरमैन होता है और आप भी दिल बड़ा करें, उसको इसी तरह समझें, ताकि अभी वजीर आजम साहब पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, तो हम पूरे पाकिस्तान के हकूक की बात करते थे वहाँ पे। और हर सूबे की देखें ना, वहाँ छोटे सूबे खैबर पख्तूनख्वा भी है, फाटा भी है, सिंध के मसाइल हैं, पंजाब के मसाइल थे, तो उनके लिए हमने भरपूर आवाज उठाया है। और इंशाअल्लाह आप लोगों को कभी गिला नहीं होगा कि बलूचिस्तान का नाम हमने खराब किया है वहाँ पे। एक बार चेयरमैन सेनेट बनने से महरूमियां खत्म नहीं की जा सकती। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बाप पार्टी के 12 सेनेटर्स ने बलूचिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की, बलूचिस्तान की आवाम का सर फख्र से बुलंद किया। मुल्क में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। एक दिन में 5,700 रुपए फी तोला महंगा। कीमत 2,18,300 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। मंदी के बाद तेजी, 170 पॉइंट्स इजाफे के साथ बंद। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 10 पैसे सस्ता। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का पहला मैच। कैंगरूज ने पहले रोज 5 विकेटों के नुकसान पर 346 रन बना लिए। डेविड वार्नर की धुआंधार बैटिंग, 164 रन बनाए। उस्मान ख्वाजा 41, ट्रेविस हेड 40, स्टीव स्मिथ 31 रन बनाकर आउट। डेब्यू करने वाले आमिर जमाल ने 2 और खुरम शहजाद ने 1 विकेट ली। शाहीन अफरीदी और फहीम अशरफ ने एक खिलाड़ियों को आउट किया। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की चीनी सनतकारों और सरमायाकारों से मुलाकात। चीनी शहर जांगसो के डिप्टी मेयर ने गौहर एजाज के एजाज में जोहराना दिया। गौहर एजाज को इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का दौरा कराया। गौहर एजाज ने कहा, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सरमायाकारी को बढ़ा रहा है। चीन का ऑटोमोबाइल सेक्टर पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकता है। वजीर आला पंजाब का कम अज कम उजरत की अदायगी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वजीर आला मोहसिन नकवी की सूबे भर में कम अज कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, कम अज कम उजरत पर अमल दरामद न होना इंतहाई अफसोसनाक खबर है। मेहनत कश को इसका हक दिलवाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करेंगे। सऊदी अरब में इस्लामी अस्करी इत्तेहाद बराए इंसदादे दहशतगर्दी का इजलास। सऊदी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फैजल रवेली ने इजलास की सदारत की। इत्तेहादी ममालिक के रुकन और मुआवन ममालिक के चीफ ऑफ स्टाफ शरीक हुए। इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के कमांडर जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ ने भी शिरकत की। इस्लामी फौजी इत्तेहाद की हिकमत अमली और उसके नुमाया इकदामात का जायजा लिया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और इंतहा पसंदी से निमटने के लिए अहदाफ पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के वज़राए दिफा का इजलास आइंदा साल फरवरी में होगा। मोदी सरकार का आसातिये सहाफत पर एक और हमला। भारतीय जरीदे समाना के एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय रवात पर मुकदमा दर्ज। संजय रवात ने गुज़श्ता रोज मोदी सरकार की पॉलिसीज पर तनकीद की थी। संजय रवात ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए इंतखाबी अमल को मशकूक करार दिया।
امریکی صدر جو بائیڈن پر بیٹے کے بیرونی ممالک کاروبار سے فائدہ اٹھانے کا الزام۔ امریکی ایوانی نمائندگان نے صدر کے مواخذے کی تحقیقات کے لیے منظوری دے دی۔ جو بائیڈن نے ایوان کے اقدام کو بے بنیاد اور سیاسی شعبدہ بازی قرار دے دیا۔ 2023 مہنگائی کے نام پاکستان میں مہنگائی کی شرح بلند ترین سطح پر پہنچی۔ اشیاء ضروریہ عوام کی پہنچ سے دور ہو گئیں۔ نگراں حکومت کے مہنگائی میں کمی کے دعوے۔ سال بھر مہنگائی کی شرح کیا رہی؟ خصوصی رپورٹ اسی بلیٹن میں شامل۔